Good morning, students. As you know, I was explaining chapter 3, discovering truth. This are the continues. And first of all, the term of truth was discovered by Howard Carter in the year 1922. And then after, Howard Carter did lots of investigation why the king passed away untimely, because it was a mystery to everyone. And Howard Carter wanted to solve the mystery of getting a real clue how and why he died so early. As you know, I was explaining yesterday, and I told you he was just 19 years old. King Tut was just 19 years old when he passed away, and he ruled just 11 years, and he was the last heir of his dynasty. So today, when he got the coffin of a pharaoh of King Tut, when Howard Carter got the coffin of King Tut, what did he do with it? Let us see. First of all, he tried to get out the dead body from the coffin, but he was unable to get it. So he put the dead body in the sun, just because of melting the resin over it. जो उस पर रेजिन लगा हुआ था, रेजिन मैंने बताया था, इट्स अ स्टिकी सब्सटेंस टू बी यूज्ड टू ममीफाई द डेड बॉडी इन एंशिएंट टाइम्स. एंशिएंट टाइम्स में डेड बॉडी को ममीफाई करने के लिए रेजिन्स का यूज़ किया करते थे लोग. एक स्टिकी सब्सटेंस हुआ करता था, वो एक केमिकल हुआ करता था. सो the sun can be down like a hammer. This for south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. And Howard Carter put the dead body in the sun just to loosen the resin because of the scorching sun. As you know, in Egypt, we know the atmosphere of Egypt, and it's very hot temperature. We get it in Egypt because all around there are lots of sands, and the sun burns, and the sun brights, and the sun shines very brightly. So for several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. He left the dead body over there at 149 degree Fahrenheit to loosen the resin that was stuck to the dead body of the king pharaoh. Nothing burst, but it did not move. कुछ भी नहीं हुआ इतनी देर तक. In spite of lying down for a long time, it did not budge. Mean to say, the resin did not lose. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. And he reported to the officer, and he reported with the scientific that he had to put the body out from the coffin, and he had to do lots of chiseled, means he had to hammer the dead body to take it out from the coffin. And he did so. उसने ऐसा किया भी. कॉफिन को बाहर निकालने के लिए उसने पहले परमिशन मांगी. परमिशन जब ग्रांटेड हो गई तो उसने क्या किया, उनके लिम्स को, किंग टूट के लिम्स और जितने जो भी लिम्स थे जो काफ़ी ज़्यादा
हार्डन हो गए थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया, चीजल्ड किए, उन पर हथौड़ी मारी जिसे वो बाहर निकाला है उसके रिमेन्स को, द रिमेन्स जस्ट टू गेट आउट फ्रॉम द कॉफिन। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और अपनी बचाव में कार्टर ने यूज़ किया जो ऑप्शन रखा, जैसे कि मैंने बताया कि उसने पहले से एक्सप्लेन कर दिया था कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेक द डेड बॉडी फ्रॉम द कॉफिन बिकॉज इट बिकेम वेरी हार्ड, बहुत हार्ड हो गया था, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने चीजल्ड का यूज़ किया, हथौड़ी का यूज़ किया उन्हें बाहर निकालने के लिए, उसके रिमेन्स को, उसके लिम्स को, उसके ट्रंक को बाहर निकालने के लिए। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। और अच्छा, अपने डिफेंस में उसने, अपने रेफरेंस में और अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा और इसमें एक्सप्लेन किया कि वाई डिड ही डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बताया कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं उनकी उसके डेड बॉडी को अगर मैं कट नहीं करता, तो फिर वहाँ पर जो थीव्स आते, टॉम में थीव्स आते, चोर आते, और जो कॉफिन प्योर गोल्ड की बनी हुई थी, लोग सर्कमवेलेटेड करते, मीन्स टू मूव अराउंड, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते, और गार्ड्स की आंखों में धूल झोंककर, मीन टू से टू मेक फूल टू द गार्ड्स, ही टुक आउट द गोल्ड एंड रैन अवे फ्रॉम देयर, वो गोल्ड को लेते और वहाँ से भाग जाते, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इन टुट्स टाइम द रॉयल वर fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them। टुट्स के टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, दे वर वेरी वेल्दी, वो बहुत अमीर हुआ करते थे, और ऐसा थॉट करते थे, ऐसा सपोज किया जाता था कि when the king passed away he took all the riches with him। it means जब वो मरते थे तो लोगों का ऐसा विश्वास था और ये लोग ऐसा उम्मीद करते थे कि वे अपने साथ सारे रिचेस को, मीन्स सारे धन को, सारे पैसे को वो अपने साथ अपने कॉफिन में ले जाते थे, जहाँ पर उनको बरीड किया जाता था। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheath for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask. And it's very important to you all. What the King Tut took with him is given here। किंग टुट ने अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ें लेके गए इस गिवन ईयर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिटरिंग गुड्स, वट एवर ही नीड्स लाइफ आफ्टर डेथ ही टुक विद हिम, प्रेशियस कॉलर्स इज टू बी यूज्ड हियर, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ताबीज होती है, एम्यूलेट्स मीन्स ताबीज, a ceremonial apron what the king used when he walks away from the court। जब वो कोर्ट से बाहर जाते हैं तो जो एप्रन पहनते हैं, जो क्लोथ होता है, that is called ceremonial apron। sandals, sheath for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, and on top of it इट्स आइकॉनिक कॉफिन। इसकी जो कॉफिन था बहुत ही आइकॉनिक था, बहुत ही रेयर था, क्योंकि इट वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, एंड द मास्क, इसकी जो लेयर चढ़ी हुई थी, इसके ऊपर मैंने बताया था आप लोग को कि इट वाज लेड डाउन टू दी लोएस्ट पार्ट ऑफ द कॉफिन, एंड कॉफिन हैड 3 लेयर्स। कॉफिन के 3 लेयर थे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटे वाले में ही उससे बरीड किया गया था, उस कॉफिन में उसको किंग टुट को रखा गया था। तो उसके ऊपर जो
एम्ब्रॉयडरी की गई थी, उसके ऊपर आर्टफैक्ट्स जो किए गए थे, कलाकृति जो की गई थी, उस पर उसका फेस बनाया गया था और वो फेस भी प्योर गोल्ड का बना हुआ था। All of pure gold. To separate Tut from his adornments, Carter men removed the mummy head and severed nearly every major joint. As I told you, just to take it out from the coffin, and Carter's companion, Carter's servant, did lots of chisel to get out from the coffin. कॉफिन से उसे बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ल किए। उन्होंने मम्मी को पार्ट्स में कर दिया, उसे काट दिया, काटने के बाद उसे बाहर निकाला, उसके जॉइंट्स। वंस दे हैड फिनिश्ड, और एक बार जब उन्होंने ये काम कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट. When they did all these things to examine the dead body of Tut, they reassembled the dead body with its joints and took it back in the coffin. ये एग्जामिन करने के बाद और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक वुडन बॉक्स में इसे रीअसेंबल कर उसे दोबारा कॉफिन में रख दिए, जो अभी भी वहाँ पर रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है. दैट वॉज द सेइंग ऑफ जाही हवास. जाही हवास ने जब इसकी डेड बॉडी को देखा तो बताया कि हावर्ड कार्टर ने इसके साथ क्या किया. आर्कियोलॉजी हैज चेंज substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It means archaeology was not thinking about the riches he had. He wants to know what is the cause of his death and wants to know the mystery of his death. आर्कियोलॉजी को उसके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था. आर्कियोलॉजी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द रिचेज ही हैड. कितना पैसा उसके पास था इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था आर्कियोलॉजी को. ही जस्ट वांटेड टू नो हाउ ही डाइड, वो मरा कैसे. एंड इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर एवरीवन, और ये सभी के लिए मिस्ट्री था. दैट्स वाई बार बार इसके किंग टुट के कॉफिन को निकाला जाता था. जैसा कि मैंने बताया था कि पहले 1928 को हुआ, फिर 1968, फिर इसके बाद 2005 में बार बार इसके बॉडी को स्कैन किया जा रहा था, ये पता लगाने के लिए कैसे इसकी मौत हुई. It also uses more sophisticated tools including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, कार्टर की डिस्कवरी के बाद 40 साल की डिस्कवरी के बाद जब 40 साल इसके बीत गए तो एक एनाटॉमी का यूज़ किया गया, टूल्स का यूज़ किया गया, मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया गया, जस्ट टू गेट टू नो व्हाट हैड हैपेंड टू हिम. उसे क्या हुआ था, क्योंकि एक मिस्ट्री बनी हुई थी उसकी डेथ. किसी कोई फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था, किसी को पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में इसकी डेथ हुई कैसे, और सभी ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब थे.